Namaskar. Welcome to the session. This is lecture 2. In lecture 1, I explained to you about the introduction of Python pandas, right? So in today's session, we are going to learn about pandas series. So if you are in class 12 studying IP, this is a perfect session for you. By the end of this video, you will be able to learn that what is pandas series, how to create it, what are the operations we can perform on series, what is indexing, how to apply the slicing, and how to handle the missing value, and many more things. So watch till the end. Let's move. What is a pandas series? A pandas series is a one-dimensional labeled array that can hold different type of values like integer, float, string, and even it can manage the missing values. The missing values are denoted as NaN, not a number. So this is basically a one-dimensional data structure that can have the homogeneous or the heterogeneous type of data together. Okay, now let's see that how we write the code for pandas series. So this is particular code. As I told you in my previous session that we need to import the external library called pandas if we want to avail the functionality of series, data frame, and panel. Okay, so when we are using the series, so I need to import pandas into my code. Next, I have written s is equal to pd.series, and therein, in the brackets of series, there is one list. So basically, what are we doing here? We are converting a list into the series format. Okay, and how does it look like? Here it is. 10, 20, 30, 40, 50 is my output generated by a series. Okay, and this is my data. Now at the left hand side, there is one indexing 0, 1, 2, 3, 4, which is by default generated when we converted these series, right? And at the end, the data type is also mentioned integer 64. Now why int 4, 64? Because my data is of integer type. It is homogeneous data, right? And automatically interpreter has taken the 64-bit of memory. Now, what are the key features of Pandas series? As we have seen over here, that series has index labels and data values. Both the things are displayed in the output. Okay. By default, the index label starts from 0, 1, 2, 3. Okay. So let's begin with the practical implementation of Pandas series. Okay. So we are going to learn that in how many ways we can create a series. From the list, from a tuple, from a string, from a dictionary, and even from NumPy. So I'll be telling you what is NumPy, right? So let's start one by one. So I'm going to tell you first through a list. Okay. So let's import pandas. Why have we imported pandas? As I told you that pandas is an external library which needs to be installed separately to use the functionalities of string series and data frame, right? So we have imported that. Now I'm creating one object, or I can say that I have taken one variable. Now pandas dot series. Series ka S must be capital. Okay. And then print S1. Now what am I doing? I'm creating a series. But in the series function brackets, I have not passed any argument. So what will happen? It will create an empty series. Okay. So let's check it out first. My answer is this. Series empty brackets and D type is object because object is the default data type of series. Okay. Now let's go back. Up. I will create a list. 1, 2, 3, 4, and 5. I have taken 5 elements into that. And now in the series function, I'll be passing the list as an argument so that my list will be converted into the series. So what is the meaning of this particular statement actually? S1 is a variable which is holding the conversion of series, right? So pandas is the main module, dot. Series is the function inside pandas library, right? So to avail the functionality of series, I have imported the pandas, and with the help of this dot operator, I'm calling series, right? And finally, I'm printing S1. So let's run it again. अब मेरा आउटपुट क्या आया 1 2 3 4 5. This is my list which is converted into the series, and default indexing has also appeared at the left hand side, that is 0 1 2 3 and 4. Indexing we have already talked about in the list also, that how indexing works. So in the same manner in the series also the index take place in this way, starts from 0, right?
And the D type is int64 because my data is of integer type purely. This is my homogeneous type of data, and 64 bit is automatically taken by the interpreter. Okay. Now अभी मैंने बात की कि हमारा होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा है. नाउ लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट इनटू हेट्रोजीनियस. ओके, तो अब मैंने क्या किया, 3 को 3.5 बना दिया. अब मेरे दो डेटा टाइप मिक्स हो गए यहाँ पे. वन इज इंटीजर, सेकंड इज फ्लोट. नाउ लेट्स चेक इट आउट अगेन. माय आउटपुट इज दिस. Interpreter has converted all the integer values into the float value automatically. Why so? Because float is a bigger data type than integer. तो अगर उसको एक भी फ्लोट डेटा टाइप वहां पे मिलेगा, वो सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, बशर्ते सारी वैल्यूज मेरी न्यूमेरिक होनी चाहिए. ठीक है. एंड सो द डेटा टाइप हैज अपीयर्ड एज फ्लोट 64. Go back, but this is not the case if I have one more mixed data type along with my data. Now I have three data types. So one is integer, number two is float, and number three is object, or I can say string. Okay. So in this case, what will happen? My data will remain same, but my data type at the bottom will be changed to object. It is neither integer nor float, but it is object because this is my heterogeneous type of data, and interpreter is not able to recognize any one particular data type, so it is showing object. अब ये तो हो गया हमारा लिस्ट कि हम लिस्ट के थ्रू कैसे बनाते हैं, है ना. अब लिस्ट में एक और चीज आती है. अगर मैं टपल की बात करूं यहाँ पे, मैंने क्या किया, इसको एक सेपरेट कैटेगरी हम नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे इसको और करके लिख देते हैं टपल. अब टपल और लिस्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा यहाँ पर कि हमने इसके ब्रैकेट्स चेंज कर दिए. लिस्ट के ब्रैकेट्स की जगह मैंने टपल के ब्रैकेट्स लगा दिए. ठीक है. तो मेरा जो आउटपुट है इट विल रिमेन सेम एज इट इज, नो डिफरेंस एट ऑल. अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो मेरी लिस्ट है या मेरा टपल है ना, उसकी जगह अगर मुझे सीक्वेंस में डेटा को जनरेट करना है तो क्या मैं रेंज फंक्शन यूज कर सकती हूँ. रेंज फंक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, फॉर लूप के अंदर, है ना, विच इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन अ पैटर्न. ओके. तो अगर मैं यहाँ लिख दूं रेंज 1 to 6, तो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स मेरे जनरेट हो जाएंगे इन अ सीक्वेंस. राइट. एक बार देखते हैं. सी, मेरा आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 अलॉन्ग विद द डिफॉल्ट इंडेक्सिंग. तो यहाँ पे रेंज फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे फॉर लूप की नीड नहीं है. इंडिपेंडेंटली ऑल्सो माई रेंज फंक्शन कैन बी यूज फॉर द वैल्यूज. राइट. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम फॉर लूप के साथ यूज नहीं कर सकते. अगर मुझे फॉर लूप के साथ यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, फॉर आई इन रेंज एंड देन एनक्लोज दिस विद इन द लिस्ट ब्रैकेट्स. ठीक है. अगर मुझे फॉर लूप का ये वाला पैटर्न यूज करना है तो मुझे वो लिस्ट के फॉर्म में लेना पड़ेगा बिकॉज इट विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ numbers and that list of number will be converted into the series because we have applied pandas dot series. तो एक बार दोबारा चेक करते हैं. my output will remain same as it is. ठीक है. there is no change. अब वापस आते हैं. अब यहाँ पे एक और छोटा सा वेरिएशन देख लेते हैं क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं. तो एक चीज और कि एक पैटर्न में प्रिंट करने के लिए, है ना. अब मैंने स्टेप वैल्यू क्या ले ली, 3. तो मेरा 3 से 15 तक 4 नंबर जनरेट हो जाएंगे, 3 6 9 एंड 12. Here is the output. All right. तो ये हुआ मेरा लिस्ट एंड टपल. अब मुझे बात करनी है कि स्ट्रिंग के थ्रू हम इसको कैसे बना सकते हैं. तो एक बार मैं इसको जरा कमेंट मार्क कर दूं. ठीक है. यहाँ पर अब ना हमें लिस्ट देनी है, ना हमें टपल देना है, ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी है. मैंने यहाँ पे सीधा लिखा पाइथन वर्ड अ स्ट्रिंग वैल्यू. अब क्या होगा, क्योंकि एक पूरा वर्ड है तो मेरा जो इंटरप्रेटर है उसको एक एलिमेंट कंसिडर करेगा. एक बार रन करते हैं. 0 पाइथन, 0 इज द डिफॉल्ट इंडेक्सिंग एंड पाइथन इज माई एलिमेंट. ठीक है. तो एक ही एलिमेंट है अब मेरी सीरीज के अंदर. लेकिन मुझे क्या चाहिए कि पाइथन का हर कैरेक्टर सेपरेटली डिस्प्ले हो जाए इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज. तो उसके लिए हम दोबारा से क्या यूज करेंगे, फॉर आई यूज करेंगे. आई, फॉर आई इन पाइथन. राइट. और लास्ट में हम लगा देंगे अपने ब्रैकेट ये वाले.
अब क्या होगा, आई वेरिएबल जो है वो पूरे पाइथन वर्ड को आइट्रेट करेगा वन बाय वन, सारे कैरेक्टर्स को सेपरेटली। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स मेरे एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। रन करते हैं एंड हियर इज द आउटपुट। नाउ PYTHON आर माई सेपरेट कैरेक्टर्स and having the default indexes, right? So this is how we convert a string into the series. अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की। ठीक है, तो हम सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इसको हम जरा एक बार कमेंट बना देते हैं फिर से, और यहाँ पर अब या तो मैं डिक्शनरी पहले क्रिएट कर लूँ और सीरीज के अंदर डिक्शनरी का जो ऑब्जेक्ट है या उसका जो वेरिएबल है वो पास कर दूँ, या मैं डायरेक्टली इसके अंदर ही डिक्शनरी बना दूँ। बोथ आर ओके। तो मैंने डिक्शनरी ली, थ्री कॉलन सी, ये मेरी डिक्शनरी है, मुझे इसको प्रिंट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि डिक्शनरी हमेशा की एंड वैल्यू पेयर में होती है, तो की विल बी कन्वर्टेड इनटू दी इंडेक्सेस एंड वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू दी डेटा। अब 1 2 3 मेरा क्या था, कीज थी, एंड ABC क्या था, वैल्यूज थे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट टाइप आ गया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरा डेटा टाइप है, वो वैल्यूज के बेस पे होगा, राइट। अब अगर हम इसको ऑपोजिट भी कर दें, रिवर्स भी कर दें, कि मेरी जो कीज़ हैं वो करेक्टर टाइप की हैं और मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो मेरी इंटीजर टाइप की हैं, तो क्या होगा, तो भी यही होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सी, ABC आर द इंडेक्सेस एंड 1 2 3 आर द वैल्यूज, बिकॉज जो भी डाटा टाइप या जो भी चीज़ मैंने की पे लिखी है वो मेरा इंडेक्स बन जाएगा, और जो भी मैंने वैल्यूज के अंदर इंसर्ट किया वो मेरा डेटा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डी टाइप है दैट इज int64 बिकॉज माई डेटा इज 1 2 3, नॉट ABC। ABC आर दी इंडेक्सेस। अब डिक्शनरी में मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, डिक्शनरी में बेनिफिट ये हो रहा है कि जो मेरे इंडेक्सेस हैं वो मेरे अपनी मर्जी के आ रहे हैं, जो भी मैं की के अंदर लिखूंगी वो मेरा इंडेक्स बन जाएगा। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है। लेकिन लिस्ट टपल में भी आई कैन हैव माई इंडेक्सेस ऑफ माई ओन चॉइस। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। इसको हम ज़रा कमेंट बनाएंगे और उनको हम कमेंट से हटा देते हैं, एंड यहाँ पे हमने डेटा बनाया था ये वाला, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट लिखेंगे इंडेक्स, क्योंकि मुझे अपनी मर्जी से इंडेक्सेस दे रहे हैं, तो आई हैव वन एट्रीब्यूट विच आई विल पास एज एन आर्ग्यूमेंट इनसाइड दी लिस्ट ब्रैकेट। ठीक है, ये जो फॉर लूप है, दिस इज माई डेटा कॉमा इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस में मैंने क्या दिया, मेरे कितना डेटा प्रिंट हो रहा था, 4 प्रिंट हो रहे थे ना यहाँ पर। ठीक है, तो 4 इंडेक्सेस मैंने यहाँ असाइन कर दिया। अब मेरा डेटा कैसे आएगा, ऐसे 3 6 9 12, ये तो मेरा डेटा है जो मेरा फॉर लूप से जनरेट हो रहा है, और ABCD क्या है, लेबल्ड इंडेक्सेस। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स कम कर दिया या एक इंडेक्स बढ़ा दिया तो मुझे एरर मिल जाएगा, और एरर क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ वैल्यूज डज नॉट मैच विद द लेंथ ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मुझे खासा ध्यान रखनी है कि जितनी मेरी वैल्यूज हैं उतने ही मेरे इंडेक्सेस होने चाहिए, अदरवाइज वो मिसमैच हो जाएगा। डिफॉल्ट इंडेक्सिंग के केस में हमें ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद से कुछ भी असाइन नहीं करें, इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली सीरीज का इंडेक्स जनरेट कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम खुद से लेबल्ड इंडेक्सेस दे रहे हैं, तो यहाँ मुझे काउंटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने डेटा को रेंज फंक्शन के थ्रू जनरेट किया था, यहाँ पे भी आई कैन हैव माई इंडेक्सेस विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। 4 इंडेक्सेस मुझे चाहिए, 1 to 5 की हम लूप चला देंगे और मेरा इंडेक्स यहाँ जनरेट हो जाएगा 1 2 3 4 विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये हुआ लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एंड डिक्शनरी के बारे में। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा वेरिएशन और मैं आपको बता देती हूँ। एज PD हमने क्या किया, पांडास का एक अलायस कर दिया PD, मतलब एक निकनेम दे दिया उसको शॉर्ट फॉर्म में। अब अगर उसको निकनेम दे ही दिया है तो वी हैव टू चेंज हेयर एज वेल, PD डॉट सीरीज होगा, अब पांडास डॉट सीरीज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैंने पांडास डॉट सीरीज किया तो मुझे एरर मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसको अलायस कर चुकी हूँ। तो PDs डॉट सीरीज के थ्रू भी जब हम रन करेंगे तो मेरा आउटपुट सेम आएगा, देर इज नो डिफरेंस। Okay, so either way is possible, and wherever you are comfortable, in whichever way that you can use.
Now, after learning this list, tuple, string, dictionary, we are moving upon NumPy. Ab NumPy is a functionality, right, which is an array. And there is a separate library for that also. So we need to import NumPy. And NumPy needs not to be installed separately into our system. This is the inbuilt functionality of Python, right? So NumPy को भी अलायस कर देते हैं NP से, right? हमने कर दिया. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यही वाला कोड एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं and we'll see that how does it work. Through NumPy, how do we create a series? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सीरीज के ब्रैकेट में, ठीक है, मैंने लिया np.arange. अब रेंज जो फंक्शन होता है वो मेरा इंडिपेंडेंट फंक्शन है पाइथन में, लेकिन अगर मुझे NumPy यूज करना है तो मेरा रेंज फंक्शन ए रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, एरे रेंज. A stands for array. NumPy is an array. Okay. So array range मैंने यहाँ डिफाइन कर दी 1 to 6. अब इस केस में क्या होगा कि NumPy भी वही रेंज जनरेट करेगा जो मेरा रेंज फंक्शन करता है. ओनली द वे ऑफ राइटिंग एंड ओनली द फंक्शनैलिटी इज डिफरेंट. अदरवाइज रेस्ट विल रिमेन सेम. अब रन करते हैं इसको एंड आई विल चेक माई रिजल्ट. इट इज 1 2 3 4 5. बट एक छोटा सा डिफरेंस जो आपने शायद नोटिस किया हो कि यहाँ पर जो डी टाइप है वो इंटीजर टाइप है बट ऑफ 32 बिट. ठीक है, तो इंटरप्रेटर जो मेमोरी साइज ले रहा है इन एलिमेंट्स को स्टोर करने का वो ले रहा है 32 बिट्स के अकॉर्डिंग. एंड दैट इज ओनली इन द केस ऑफ NumPy. अगर आप सिंपल सीरीज बनाएंगे, कुछ भी डेटा फ्रेम बना रहे हो या कुछ भी, तो आपका 64 बिट्स का ही स्पेस ऑक्यूपाई होगा, लेकिन ओनली NumPy के केस में वो 32 पे आ जाता है, राइट? तो ये हमें ध्यान रखना है, स्पेशली इन द फाइंड द आउटपुट क्वेश्चन, क्योंकि जब फाइंड द आउटपुट क्वेश्चंस में आप आउटपुट लिख के आते हो तो डी टाइप वहां पे मेंशन करना इज इंपॉर्टेंट. तो आपको देखना है कि आप NumPy के थ्रू आउटपुट जनरेट कर रहे हो या आप नॉर्मली एक आउटपुट जनरेट कर रहे हो. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस कि int 64 आएगा या int 32 आएगा, राइट? अब ये तो था NumPy का ए रेंज फंक्शन. अगर मुझे NumPy का सिंपल एक सीरीज जनरेट करनी है तो मैंने क्या किया, एरे 1 लिया. एरे 1 इज इक्वल टू np.array और इस एरे के ब्रैकेट में मैंने एक लिस्ट बना दी 10 20 40.5 and 67, right? There are 4 elements into my array because मैंने बताया कि NumPy एक एरे है, तो एरे फंक्शन हम यूज करेंगे किसका, NumPy का. और NumPy के एरे के अंदर मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी है जो पहले एरे में कन्वर्ट होगी और उसके बाद यहां जाके जब हम इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड एज अ सीरीज. तो एक बार आउटपुट जनरेट करते हैं. इट इज दिस अगेन द सेम फंक्शनैलिटी कि जो मेरा इंटीजर वैल्यूज हैं वो सारे फ्लोट में कन्वर्ट हो चुके हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? वापस आता है. अब ये था कि हाउ टू कन्वर्ट द NumPy इनटू द सीरीज, राइट? तो NumPy के दो फंक्शनैलिटी हमने देखे हैं. एक हमने देखा ए रेंज फंक्शन एंड वन इज माय एरे फंक्शन. ओके, so after learning that how to create a series in different ways, we shall learn about some Pandas series operations, right? So this is a small code which I have written. Let me just run it. This is my series displayed over there. Now I'll be showing you some mathematical operations, or we can say the vectorized operations, that how can we perform it onto the series. If I say S1 into 2, now what does it mean? According to the list, you can assume that it will be replicated, right? Because list is replicated when I say L1 into 2. But in this case, it won't be replicated, right? But each and every element of the series will be multiplied by 2. So we can apply the vectorized operation onto our series. This is the beauty of it. So you can check the output also. Every element has been multiplied by 2, right? Similarly, I can calculate the power of each and every element. Let's check it out.
That's it. Okay, so the power of each and every element has been calculated. Apart from that, I can apply the plus operation also, right? So we can check that also. हर एलिमेंट में 2 ऐड हो चुका है. Okay, so these are my vectorized operations. Now, apart from my mathematical operations, I can have the statistical, or we can say the aggregate statistical operation. Okay, so if I say I need to find out the sum of all the elements present in my series, so I can directly apply the sum operation. Okay, let me just show to you. My elements are 1, 2, 3, 4. Okay, the sum of all the elements is 10. Similarly, I can have other operations too. So let me just list it out. Okay, I can have the minimum value. So for that, I have the min function, which I can directly apply. Then I have the max functionality. Okay, so what will be printed over here? Maximum is, right? Then total values are. Okay, I can find out that how many elements are there into my series. So I can have the count functionality. Then mean median mode बहुत common होते हैं, है ना, statistics में. तो I can calculate the mean as well. तो mean is, I can even count the median also. तो थोड़े से लिमिटेड से हम ले लेते हैं. यहाँ पे मैं आपको मीडियन भी कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ. मीडियन आ गया, है ना. तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. एक बार रन करते हैं. सीरीज याद रखना 1, 2, 3, 4. मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम इज 4. टोटल वैल्यूज आर 4 बिकॉज 1, 2, 3, 4 थे हमारे, तो काउंट कितना हो गया? 4 हो गया. मीन और मीडियन दोनों सेम आएंगे क्योंकि हमारा कैलकुलेशन सेम है, राइट? इवन नंबर्स हैं इसलिए. तो दीज आर माई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन. अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है ना. मैथमेटिकल ऑपरेशंस में और हमारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस में एक लिमिटेशन क्या है कि आई कैन ओनली हैव द न्यूमेरिक वैल्यू. अगर मैंने यहाँ पे ए ले लिया, डू यू फील कि वो सम मुझे कैलकुलेट कर देगा? मिनिमम मैक्सिमम टोटल वैल्यूज तो आ जाएंगी, है ना. मीन मीडियम कैलकुलेट हो जाएगा. एक बार रन करें. रन करते हैं एक बार. आ गए एरर? कितने आ गए? इंट एंड स्ट्रिंग आर नॉट सपोर्टेड. सम नहीं हो सकता, है ना. कितने सारे एलिमेंट्स, कितने, हर फंक्शन में मेरा एक एरर जनरेट हो चुका है. तो मुझे ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी फॉलो करनी है. हाँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रू ले लूँ, है ना, तो ट्रू के केस में अगर हम सम की बात ना करें और मिन मैक्स को भी हटा देते हैं, तो मेरा काउंट, मीन और मीडियन क्या कैलकुलेट होगा? शिल वी ट्राई? कैलकुलेटेड. क्यों? टोटल वैल्यूज तो कैलकुलेट हो जाएंगी क्योंकि हेट्रोजीनियस वैल्यूज आर अलाउड. और काउंट में मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि कितने नंबर्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं, है ना. मीन और मीडियन कैसे कैलकुलेट हो गया? बिकॉज ट्रू विल बी कंसिडर्ड एज 1.0, फॉल्स इज 0 एंड ट्रू इज 1. अगर हम ऑन एंड ऑफ स्टेट की बात करें तो मेरा जो बुलियन, ये लॉजिकल वैल्यू है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गई? 1 में. तो अगर इंटरप्रेटर ट्रू को 1.0 कंसिडर करेगा तो मेरा इजीली मीन और मीडियन कैलकुलेट हो सकता है. अब सम की बात करें एक बार. सम कैलकुलेट हो पाएगा या नहीं? सम भी कैलकुलेट हो गया. तो क्या आया? अगर मेरी लिस्ट ये डिस्प्ले होनी है, मेरी जो लिस्ट है वो कहाँ डिस्प्ले हो रही है? मेरी सीरीज यहाँ डिस्प्ले हो रही है ना. एक बार मैं सीरीज को भी डिस्प्ले कर देती हूँ, S1, है ना. तो हम दोबारा रन करते हैं. 1, 2, ट्रू 4. अब 4 + 2 6 + 1 7 एंड ट्रू को हमने क्या कंसिडर किया? 1.
तो क्या बन गया 8। तो मेरा सम क्या कैलकुलेट हो गया, होके आ गया 8, है ना। अब एक बार मिनिमम भी ट्राई कर लेते हैं कि मिनिमम कैलकुलेट होगा या नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, इन सबको कमेंट बना देती हूँ, ठीक है। अब करते हैं मिनिमम इज 1, ठीक है। तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हुई 1, क्योंकि ट्रू भी मेरा 1 कंसिडर हो रहा है। अब एक बार इसको फॉल्स करके देखते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम इज फॉल्स। वाई? क्योंकि जो ट्रू है वो 1 कंसिडर हो रहा था, और फॉल्स जो है वो 0 कंसिडर होता है। तो 1 से छोटा वैल्यू क्या हुआ, फॉल्स। तो मेरा मिन और मैक्स भी अप्लाई हो गए। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि मेरे बुलियन वैल्यूज पे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, बट कैरेक्टर वैल्यूज पे नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर मैं वापस से ए की बात करूं, या कोई और वैल्यू ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है। तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई भी वैल्यू कंसिडर नहीं हो पाएगा। ट्रू और फॉल्स का ऑन एंड ऑफ स्टेट के चलते हुए 1 एंड 0 कंसिडर हो जाएगा, और इसलिए हमारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस जो हैं वो उन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देके चलना पड़ेगा कि मेरी वैल्यूज किस टाइप की हैं, और उस टाइप में भी मतलब जो मेरा फ्लोट है या न्यूमेरिक है वो दोनों चलेंगे ही चलेंगे, उसके अलावा मेरा बुलियन चल जाएगा, लेकिन कैरेक्टर वैल्यूज नहीं चलेंगी, राइट। So now we will discuss about the slicing, custom labels, and many more things, right? So how to do the slicing in series? Slicing is similar to the list slicing, and even accessing the elements in the series is almost same as we access the elements in the list. Like, this is my series, and if I want to access the second index position, right? Now, according to my series, what is the second index position? 0, 1, 2. That means 5. Okay. So my answer must be 5. It is. Similarly, if I want to display my my series into the reverse order, so I will apply the same procedure as we used to apply into the list. So I'll display it in this way, right? And accordingly, my index positions are also reversed. Please observe that, because in find the output questions, it will be really helpful that my index also change according to my values. So this is the way we, do indexing. But if I wish to access negative indexing, it will not work directly with the square brackets, but for that we have two separate indexing methods, that is iloc and loc. So we'll be talking about these two methods in our next video, not right now, but I will show it to you that direct square brackets में negative slicing will not work, right? It will give you the error. Now, custom indexing. Okay, so for that I need to index my series. So I'll be taking quickly B, C, D, and E, because 5 values are there. So there are 5 indexes, and directly I can access my element with the help of labeled index, or we can say the custom label, right? So if I say the element is 5, because if I say कि 1 एक्सेस हो रहा है ए से, 3 एक्सेस हो रहा है बी से, और 5 एक्सेस हो रहा है सी से, तो ये हमें चाहिए क्यों होता है। लाइक मेरे ईयर में 12 मंथ्स हैं, और अगर मुझे हर एक का मतलब किसी भी मंथ के नंबर ऑफ डेज को एक्सेस करना है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट ओवर देयर मार्च का चाहिए मुझे, दिसंबर का चाहिए, नवंबर का चाहिए, ठीक है। स्लाइसिंग में आई कैन यूज द कस्टम लेबल इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग कि अक्टूबर मेरा कौन से वाला मंथ है, नवंबर मेरा कौन से वाला मंथ है, अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट इंडेक्स, राइट। नवंबर 11th मंथ है, लेकिन इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वो 10 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें बेनिफिट हो जाता है कस्टम लेबल्स के थ्रू एलिमेंट्स को जब एक्सेस करना होता है।
अब ये तो बात हुई कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट थ्रू द इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और कस्टम लेबल्स। अब हम आते हैं कन्वर्ट द डेटा टाइप। अब यहाँ पर क्या है कि मेरा जो डेटा टाइप डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है वो हो रहा है int 64, जो मेरा इम्प्लिसिट कास्टिंग है, मतलब जो इंटरप्रेटर ने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया, राइट। बट अगर मुझे इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना है इनटू एनी अदर डेटा टाइप, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा डी टाइप इज इक्वल टू np, numpy फंक्शनैलिटी यहाँ यूज होगी, डॉट फ्लोट 32। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी जितनी भी वैल्यूज हैं सारी फ्लोट में कन्वर्ट हो गई और मेरी डेटा टाइप क्या आ गई, फ्लोट 32। फ्लोट 32 में ही मुझे कन्वर्ट करना था, तो आई फोर्सफुली कन्वर्टेड माई डेटा टाइप फ्रॉम int 64 टू फ्लोट 32। दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अब अगर मैं यहाँ करूँ int 32, ठीक है, int 64 है डिफॉल्ट, 32 में करेंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा जो वैल्यूज का डेटा टाइप है वो सेम रहेगा, क्योंकि इंट से इंट में ही कन्वर्ट करें, सिर्फ मेमोरी एलोकेशन 64 से 32 बिट जा रहा है, राइट। ये हो गया कन्वर्टिंग डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं हैंडलिंग द नैन वैल्यू, राइट। अब नैन वैल्यू को हैंडल करने के लिए पहले मेरे पास नैन वैल्यूज होनी भी चाहिए। नैन वैल्यू होता क्या है, नॉट अ नंबर, दैट मीन्स द मिसिंग वैल्यू। अब मेरी एक एक्सेल शीट है, उसमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ डेटा मेरा मिस है, ठीक है, उसको मैंने एक्सेस किया सीएसवी के थ्रू। अब जो मिसिंग वैल्यूज है वो किससे शो होंगी, नैन से। मेरे डेटाबेस में मेरे जो पांडास के थ्रू जो मैंने एक्सेस किया उस एक्सेल शीट को अपने टेम्परेरी लोकेशन पे, वहां पे क्या शो हो जाएगा, नैन वैल्यू। वो ब्लैंक नहीं रहेगा, वो नैन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि अगर मुझे चेक करना है कि कोई नैन वैल्यू है या नहीं, तो मेरे पास नैन वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएशन के टाइम पे हाउ टू ऐड द नैन वैल्यू मैं आपको बताती हूँ। ऐसे करके np.nan, एरे के थ्रू वो नैन वैल्यू ऐड होगी, और नैन हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, कैपिटल N स्मॉल a कैपिटल N, राइट। अब मैंने 7 को भी रिप्लेस कर दिया np.nan से, तो मैंने दो वैल्यूज यहाँ पे नैन इंसर्ट कर दी। एक बार रन करके देखते हैं, डी टाइप हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अब मुझे, और रन करते हैं। तो मेरा जो सीरीज है वो कैसे प्रिंट होगा, ऐसे, हाउ मेनी नैन वैल्यूज आर देयर, 2, राइट। और उनके इंडेक्सेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब मेरे ऑपरेशंस आते हैं कि क्या एन वैल्यू है, अवेलेबल है, जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो एन है, मतलब वो नल है। तो उसके लिए मुझे चेक करने के लिए मेरा कौन सा फंक्शन होता है, इज एन, डॉट इज एन, सॉरी, ठीक है, कि क्या वो नल है या नहीं। तो मेरा आंसर बुलियन में आएगा, ट्रू और फॉल्स। अब एक बार चेक करते हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नल नहीं है। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नल है, राइट। अब इस एन के प्लेस पे आई कैन राइट इज नल, and both have the same functionality, right? Just check it out. It will also give you the same result. There is no difference. So either of the way you can perform this operation, जो भी आपको याद रहे। अब आते हैं हम नॉट एन ए। अब जैसे हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, इन एंड नॉट इन, रिवर्स हो जाता है ऑपरेशन, यहाँ पे भी यही होगा। इस एन ए मुझे नैन वैल्यू पे ट्रू दे रहा है, नॉट एन ए मुझे नैन वैल्यू पे फॉल्स दे देगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। देखते हैं एक बार, देखो रिवर्स हो गया, जहां यहाँ पे फॉल्स था वहां पे ट्रू आ गया, और जहां वहां पे ट्रू था यहाँ पे फॉल्स आ गया, रिवर्स। नॉट एन ए, कि ये नल नहीं है, हाँ ये नल नहीं है, ठीक है, ये नल नहीं है, नहीं ये नल है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको कंसिडर करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। नॉट एन ए भी हो गया। अब अगर मेरे डाटाबेस में एन ए वैल्यूज हैं, तो मुझे उन्हें नैन शो नहीं करना, मतलब उनको मिसिंग नहीं रखना, क्योंकि मुझे उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने हैं, जो हमने अभी मैथमेटिकल और ये सब पढ़ा है। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन मुझे अप्लाई करना है तो नैन वैल्यू पे कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको फिल कर देंगे 0 पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिल एन ए 0, फिल एन ए के ब्रैकेट में एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। आई कैन नॉट लीव इट ब्लैंक, फिल एन ए के ब्रैकेट्स को आई कैन नॉट लीव ब्लैंक, राइट, क्योंकि वो एरर दे देगा।
तो मुझे एक वैल्यू तो यहाँ लिखनी होगी। अब फिल एन जीरो से क्या होगा, नैन वैल्यू के प्लेस पे जीरो आ गया। चेक करते हैं, ये देखो आ गया जीरो। एक तो ये वैल्यू, एक तो ये मेथड हुआ फिल एन ए, फिल नॉट अ नंबर वैल्यू, ठीक है। अब मुझे जीरो फिल नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे मेथड्स अप्लाई करने हैं। मेथड्स इज इक्वल टू, एक होता है फॉरवर्ड फिल, एक होता है बैकवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल में क्या होगा, जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है वो आगे वाली नैन वैल्यू में फिल हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, ठीक है। बैकवर्ड फिल में क्या होगा, जो मेरी पीछे वाली वैल्यू है, मतलब आगे वाली जो वैल्यू है वो पीछे वाली वैल्यू में कॉपी हो जाएगी। तो फॉरवर्ड फिल एक बार करके देखते हैं, यू विल अंडरस्टैंड विद द आउटपुट। सी, ये मेरा जीरो था, मतलब ये मेरा नल वैल्यू था, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू क्या थी इससे, वन। प्रीवियस वैल्यू आगे वाली नैन वैल्यू में कॉपी हो गई, वन हो गया। सेकेंड नैन वैल्यू थी मेरी ये, ठीक है, इससे प्रीवियस वैल्यू क्या थी, फाइव। तो मेरी नैन वैल्यू में फाइव ही कॉपी पेस्ट है। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड फिल, प्रीवियस वैल्यू को आगे फिल कर देना, ठीक है। मतलब एन ए एन से पहले जो भी वैल्यू है वो आगे फिल हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। अब हम इसी पे अप्लाई करते हैं बैकवर्ड फिल, बी फिल, ठीक है। रन करते हैं। अब ये देखो, मैं आपको एक बार ये रन करके प्लीज दिखा देती हूँ, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि कौन सा एन था और कौन सा नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे दो आउटपुट आए हैं, एक तो मैंने S1 को प्रिंट किया था जिसमें मेरी नैन वैल्यूज विजिबल है, और ये मेरा बैकवर्ड फिल है। अब ये वाला नैन है, इससे फॉरवर्ड कौन सी पोजीशन, कौन से एलिमेंट है, 9.0। तो मेरा ये बैकवर्ड फिल हो गया NaN के प्लेस पे, आगे वाली वैल्यू पीछे कॉपी पेस्ट हो गई, ठीक है। अब ये वाला n था, नैन वैल्यू, ठीक है। तो मेरा 5 यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। दिस इज नोन एज बैकवर्ड फिल, ओके। तो देयर आर 3 ways टू फिल अ वैल्यू। नंबर 1 इज कि आपने फिल आने के ब्रैकेट में कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दी और उससे मेरा पूरा का पूरा वैल्यू फिल हो गया, नैन वैल्यूज, ठीक है। एक होता है मेथड फॉरवर्ड फिल एंड बैकवर्ड फिल। अब एक और चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि हमने मेथड की जगह जैसे जीरो को फिल किया था, यहाँ पे हम कोई ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, सीरीज का मीन निकाल लिया और जो भी मीन आएगा वो सारा फिल एन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी नैन वैल्यूज हैं, और जो मेरा क्या कहता है मीन आया है वो क्या आया है, 5। तो हर जगह 5 5 फिल हो गया, 5.0, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिल एन। अब हम मेथड करेंगे ड्रॉप एन। अब ड्रॉप एन किसे कहते हैं, कि मेरी जितनी भी नल वैल्यूज हैं, जितनी भी नॉट अ नंबर वैल्यूज हैं, उन सबको हटा दो, मुझे क्लीन डेटाबेस चाहिए अपना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ड्रॉप एन, ओके। ड्रॉप कर दिया मैंने सारे नल वैल्यूज। अब मेरी ये नल वैल्यूज यहाँ पर थी। अब आप इंडेक्सेस देखो और अपनी वैल्यूज को चेक करो। ए में वैल्यू थी 1.0 है, सी में वैल्यू थी 5.0, ई में वैल्यू है 9.0। कौन से रिमूव हुए हैं, बी एंड डी इंडेक्स, और साथ में इंडेक्स भी रिमूव हो गया है। आपका जो इंडेक्स है वो रिफ्रेश नहीं हुआ या एडजस्ट नहीं हुआ, एबीसी नहीं बन गया, है ना। इंडेक्स चेंज नहीं हुआ बाकी वैल्यूज का, जैसे हमारा लिस्ट में होता था, एडजस्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे वही रहेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड लिस्ट, क्योंकि जो सीरीज है इट इज द डेरिवेशन ऑफ योर एरे, नमपाई एरे। तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्सेस वही रहेंगे जो थे। रिमूव हुआ है तो इंडेक्स भी रिमूव हो गया, ऐड हुआ है तो इंडेक्स भी ऐड हुआ है उसके साथ, और वही रहेगा। चाहे रिवर्स होगा तो इंडेक्स भी रिवर्स हो जाएगा। So these are the operations we have performed onto the series. So I hope this is enough for the day. Let's recapitulate what have we learned today, right? So Pandas series features क्या होते हैं? Number 1 is one dimensional data structure. एक ही कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपने आउटपुट में देखा है, there is no second column. And we have learned in the beginning that it is size immutable. Data mutable. Data change हो सकता है, size change नहीं हो सकता. Next is can store the heterogeneous data. I have shown you practically कि हम homogeneous भी कर सकते हैं, heterogeneous भी कर सकते हैं. Next is custom indexing supported. जो हमने अपनी तरफ से इंडेक्सेस वहां पे दिए हैं, that is known as the custom labels, ठीक है, और उनसे डेटा को एक्सेस भी करके देखा है. Highly optimized for performance. Why so? Because it is able to handle the large data sets and it can perform the operations just in nanoseconds too. Okay, handles missing values efficiently.
मिसिंग वैल्यूज को हमने ड्रॉप भी कर दिया, हमने उन्हें फिल भी कर दिया, बैकवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल, जैसे चाहा वैसे एडजस्ट कर दिया. And we have learned also that how to add the NaN values. Then we have supports mathematical operations, even the statistical methods too. Vectorized operation perform kiye, mean median mode bhi apply kiya. I guess this is enough. Thank you. And in our next video, we will learn about the attributes of the list series. Right? Thank you.